Swaminarayan. My name is Milan Gagaria. In this video, we start our new exercise, exercise 14.1. In this exercise, we use the concept of mean. Okay, so just be ready, open your mind. Let's start it with question number 1. First of all, read this question. A survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Find the mean number of plants per house. So one frequency distribution table is given to us. Number of plants 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. With that, number of houses 1, 2, 1, 5, 1, 6, 2, 3, like this. Okay? Which method did you use for finding the mean and why? Which method did you use for finding out the mean and why? So students, here first of all we need to write this table in vertical way. Okay, in question it is given in the horizontal wise. We need to write as per the vertical wise. Now, number of plants that is given to us in terms of class. Here class distribution are given to us. That means this is continuous frequency distribution table. Okay. First of all, we need to check that this is inclusive or exclusive. So here these two numbers are 2, 2, 4, 4, 6, 6. That means this is exclusive rate, and that we want. Okay. Now check the class length of all the classes. Class length. What is the formula? Upper limit minus lower limit. That means subtraction. 2 minus 0 2, 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2, 12 minus 10 2. That means class length are 7. So here we can use all the methods. Okay. Now here first of all written in the equation, which method will you use here and why? So here, so students, here these numbers are small. These numbers are very small. So we can use the direct method. Okay, so write down here. Here numbers are small, so we use direct method. Now what is the formula of mean for direct method? So mean x bar is equal to sigma fx divided by sigma f. Okay. Now here we need to find the mean. Okay. Here we need to find the mean. So for finding out the mean, our first work is to find the value of x. Our first work is to find the value of x. Now x means what? Mid value, otherwise class marks. It is also called class mark. Okay. X means what? Mid value, otherwise class mark. Both are 7. Now mid value. How we can find this mid value? Addition of two numbers divided by 2. That means upper limit plus lower limit divided by 2. We can use the formula. Otherwise, if we know answers directly, that means sometimes if numbers are very easy, so directly we can find the mid value. Okay students, यहाँ पे तो हमें पता ही है कि 0 to 2 के बीच में एग्जैक्ट कौन सा नंबर आता है? 1, 2 to 4 के बीच में 3, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. यदि हमें पता नहीं चल रहा है तो हम फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं. दोनों ही वे से हम जा सकते हैं. तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 to 2 के बीच में कौन आएगा? 1, 2 to 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5. यदि मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैं फॉर्मूला का भी यूज कर सकता हूं. 8 plus 6 14 divided by 2 7. देखो 6 और 8 के बीच में कौन आता है? 7. Now 10 plus 8 18 by 2 9. तो 8 और 10 के बीच में कौन आता है? 9. मतलब आंसर्स तो सेम ही आएंगे. तो यदि हम श्योर है कि हमें पता ही है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे. बट यदि हम श्योर नहीं है तो फॉर्मूला का यूज करेंगे. दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2. ओके. 12 plus 10 22 by 2 11. 14 plus 12 26 by 2 30.
Okay, so here our x is ready. Now we have the same method as we can use in discontinuous frequency distribution, because in discontinuous frequency distribution x and f are given to us. So now methods are similar. So now what we need to do, just look at the formula sigma fx. So what we want, fx, यहां से हमें पता चल जाए कि हमें आगे क्या करना है, fx. So fx फाइंड करो. fx means what, f और x का मल्टीप्लाई. f यहां हमारे पास है, यहां पे x भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो. So 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 multiply 5 5, 5 multiply 7 35, 9 multiply 6 54, 11 multiply 2 22, 13 into 3 39. Okay, now what we need to do, we need to find the addition, that is sigma. So इनका addition find करो. उनको बोला जाएगा sigma fx. इनका addition करो. Okay, so here 9 plus 2 11, 11 plus 4 15 plus 5 20, 25, 31 and 32. So 2. Now 3 remainder. So 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 plus 2 13, 13 plus 3 16. So 162. Okay. Now in denominator sigma f, that means f का total, f यहाँ पे इनका total find करो sigma f. Sometimes ये हमें directly question में भी दिया होता है. इस question में दिया है, क्या लिखा है देखो. So in question in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house. दिया है कि total house कितने हैं 20. तो यहाँ पे number of houses, total houses कितने हैं 20. So directly मैं लिख सकता हूँ कि 20. क्योंकि question में दिया है कि total 20 houses. Okay? Otherwise आपको ना पता चले कि question में दिया है या नहीं, तो क्या करना है, इनका एडिशन कर लो. 3 plus 2 5, 5 plus 6 11 plus 5 16 plus 1 17 plus 2 19 plus 1 20. इस वजह से भी आप फाइंड कर सकते हो. ओके, अब दोनों ही वैल्यूज हमारे पास है, इनको यहाँ पे पुट कर दो. सिग्मा fx 162 डिवाइडेड बाय 20. सो 162 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 81. और एक जीरो है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट, सो 8.1. ओके, और इनका यूनिट भी हमें लिखना होता है. और यूनिट किसका आएगा, जो क्लास का यूनिट होगा वो नंबर ऑफ प्लांट्स है. सो 8.1 प्लांट्स. ओके, क्लास बेसिकली क्या होता है, जिनका मीन फाइंड करना हो उनके ही क्लास में दिए होते हैं. जिनका मीन फाइंड करना हो उनका ही क्लास हमें दिया होता है. हमें क्या फाइंड करना था, मीन ऑफ द प्लांट्स. किसका मीन फाइंड करना था, प्लांट्स का. तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो हमारे लिए क्या होगा, क्लास. जिनका मीन फाइंड करना होगा उनके ही क्लास हमें दिए होंगे. डिस्कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिनका मीन फाइंड करना हो वही वैल्यू हमें दी होती है और वही हमारे लिए x होता है. जिनका मीन फाइंड करना हो वही हमारे लिए x होता है. सेकंड थिंग, मीन का जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट किन के बीच में से आएगा, जिनका हम मीन फाइंड कर रहे हैं वहां से. अभी हम किसका मीन फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ प्लांट्स का. तो प्लांट्स की वैल्यू देखो, इनके बीच में से ही आंसर होगा 8.1. तो 8 to 10 में वो कवर होते हैं, इनके बीच में से ही आंसर होगा. तो ये भी ध्यान में रखना, जिनका हम मीन फाइंड कर रहे हैं उनकी वैल्यूज तो दी हो क्वेश्चन में, उसी में से आंसर आता है, उनकी रेंज में से ही आंसर आएगा. मतलब यदि आपका आंसर आया 81 गलती से, तो आपको पता चलना चाहिए कि 81 तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं. ओके, नाउ और यहाँ पे आपको पेंसिल और स्केल का यूज करके टेबल भी बनाना है परफेक्टली. ओके, यहाँ तो परफेक्टली स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको परफेक्ट स्केल और पेंसिल का यूज करके टेबल बनाना है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर read the question. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Okay, daily wages दिए हैं, number of workers दिए हैं. अब इसका मीनिंग क्या है कि 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस 100 to 120 के बीच में है.
14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस इन दोनों के बीच में है। 18 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका वेजेस 140 टू 160 के बीच में है। उस हिसाब से टेबल है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर क्या फाइंड करना है? मीन। किसका मीन फाइंड करना है? वेजेस का। डेली वेजेस का मीन फाइंड करना है तो उनके ही क्लास हमें दिए हैं। हर बार ऐसा ही होगा और हमारा जो आंसर आएगा वो भी इनके बीच में से ही होगा। ओके, एक और चीज दी है 50 वर्कर्स, दैट मींस नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 50। तो इनका टोटल भी दिया है और ये ना पता चले तो हम क्या करेंगे? इनका एडिशन करेंगे। 14 प्लस 12 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 प्लस 10 50। ओके, नाउ ये एक्सक्लूसिव टाइप भी है और सब में क्लास लेंथ भी सेम है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ। बट एक और स्टूडेंट, एक बात और, यदि क्वेश्चन में ऐसा ना लिखा हो कि कौन सी मेथड यूज करनी है तो फिर आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पे आप डेविएशन भी यूज करते हो, स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर सेम ही आएगा और ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस आएगा वो पॉइंट में होगा, वो चलेगा। ओके, तो मेथड्स जो है वो हमें डिसाइड करने कि हम कौन सी यूज करेंगे। यदि हम कंफ्यूज है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और यदि ये कंफ्यूजन है कि इसमें स्टेप डेविएशन यूज होगी या नहीं तो फिर डायरेक्ट मेथड का यूज कर लो। डायरेक्ट मेथड में होगा क्या? कैलकुलेशन लंबी होगी बट इसका फॉर्मूला भी इजी है, टेबल बनाना भी इजी है। ओके, अदरवाइज यदि हमें पता चल रहा हो तो स्टेप डेविएशन सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत ही जल्दी उनका आंसर आ जाता है। ओके, अभी यहाँ पे भी हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं बट डायरेक्ट मेथड का हमने यूज कर लिया तो आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे डेविएशन का यूज करूंगा। हालांकि यहाँ पे स्टेप डेविएशन बहुत ही इजी होगी बट आपको सिखाने के लिए अभी हम यहाँ पे डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, सो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा? टी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है? मीन। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहला वर्क क्या होना चाहिए? x फाइंड करना। x बोले तो क्लास मान, अदरवाइज मिड वैल्यू। ओके, मीन फाइंड करना है तो सबसे पहला वर्क जो है हमारा वो क्या रहेगा? क्लास मान x, दैट मींस मिड वैल्यू x फाइंड करना है। यहां पे भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट? 100 और 120 के एग्जैक्ट बीच में कौन होता है? 110। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 130, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 150, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 170, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 190। यदि हमें कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे? दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। देख लो यहां 160 प्लस 180 340 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 170 आएगा। एडिशन 160 प्लस 140 300 डिवाइडेड बाय 2 150। उस वजह से भी जा सकते हैं। ओके, नाउ आप ये सोचो कि यदि हम इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता? fx। fx यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए हम डायरेक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, डेविएशन पे जा रहे हैं। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पे देखो d। d का क्या फॉर्मूला रहेगा डेविएशन में? x माइनस a। x माइनस a है तो सबसे पहले हमें a फाइंड करना होगा। a फाइंड नहीं करना होता है, वो हमें डिसाइड करना होता है। तो अब हम a की वैल्यू डिसाइड करेंगे। वो आप अपनी चॉइस पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट हम ये ट्राई करेंगे कि सेंट्रल वैल्यू का यूज करें। ओके, एक चीज और ध्यान में रखनी है, a की जो वैल्यू एज्यूम करेंगे वो x में से ही करनी है। गलती से भी f पे मत चले जाना। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसमें से x की वैल्यू एज्यूम करते हैं और रॉन्ग है। a एज्यूम में उसकी वैल्यू x में से ही एज्यूम होगी। हालांकि हम कोई भी ले सकते हैं बट हम ट्राई ये करेंगे कि x की सेंट्रल वैल्यू यूज करें, तभी हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है। यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू देखे तो इसका यूज हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 150 ले रहा हूँ, आप
इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट ट्राई करना कि मिडिल वैल्यू ही हम ले। तो हम a ले रहे हैं 150। ओके, d x - a की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है, वो हम ले रहे हैं 150। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, d फाइंड कैसे होगा? फॉर्मूला क्या है? x - a। x की वैल्यू डिफरेंट है हमारे पास, a हमारा फिक्स रहेगा 150। दैट मींस हमें करना क्या है, इन सभी वैल्यू में से हमें 150 माइनस करने हैं। इन सभी वैल्यू, पहले क्या है x, तो पहले हम ये वैल्यू रखेंगे, माइनस करेंगे a, माइनस करेंगे 150 सब में से। तो 110 माइनस 150 आंसर क्या आएगा? ओके, प्लस माइनस माइनस 150 माइनस 110 40, बिग नंबर माइनस है तो माइनस 130 माइनस 150 प्लस माइनस माइनस 150 माइनस 130 20, बिग नंबर 150 माइनस है तो माइनस 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। ये हमारा आ गया डी। और ध्यान में रहे, ये जो हमने किया है वो हमारा रफ वर्क है, वो हमें शो नहीं करना है, ये हम शो नहीं करेंगे, ये हमारा रफ वर्क था। ये आपको पेंसिल से लिखना है, बाद में हटा देना, और डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर पाओ तो डायरेक्ट डी लिख सकते हैं। ओके, डी कैसे फाइंड होता है? x माइनस a, x यहाँ पे है, इन सब में से क्या माइनस करना है? a, इन सब में से a माइनस करो तो ये वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब आगे का काम क्या है? f d का मल्टीप्लाई चाहिए, f और d का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। सो f d, ध्यान में रहे f यहाँ पे है, d यहाँ पे है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखते जाना है। ओके, सो नाउ मल्टीप्लिकेशन 12 4 जा 48, 1 0 है तो 0, प्लस माइनस माइनस 14 into 20, 14 2 जा 28, 1 0 है तो 0, प्लस माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई 0 0, 20 into 6 120, 40 into 10 400। ओके, अब हमें क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, किसका? एफ डी का। एफ डी का हमें क्या करना है? एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? पहले नेगेटिव नंबर्स का एडिशन करो, नेगेटिव का एडिशन करो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस ही, तो इनका एडिशन करो। तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 8 16, 1 रिमाइंडर, 4 प्लस 2 6, प्लस 1 रिमाइंडर 70। नेगेटिव साइन है तो आगे रहेगी नेगेटिव साइन। अब पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन करो। सो 400 प्लस 120 520, इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 760 माइनस 520, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 5 2, बिग नंबर 760 नेगेटिव है, सो नेगेटिव। तो हमारा सिग्मा एफ डी क्या आया? माइनस 240। ओके, और हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ को हम फाइंड कर चुके हैं, अब ये सभी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ए हमने क्या लिया था? 150। सिग्मा एफ डी वो हमारा आया है माइनस 240 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, वो आया है 50। ओके, नाउ 150 प्लस माइनस माइनस 0 0 कैंसिल, 24 बाय 5। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, बट इनका डिवीजन ही फाइंड कर लेंगे। सो 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 8 जा 40। तो आंसर क्या आया? 4.8। 150 में से इसको माइनस करो। ओके, 150 4.8, तो यहाँ पे भी 0.0 रख दो। अब यहाँ पे आएगा 10 9 4, 10 माइनस 8 2, पॉइंट है तो पॉइंट, 9 माइनस 4 5 4 1। सो आंसर है 145.2। और यूनिट क्या है? क्लास का यूनिट आप देखो रुपीस है, रुपीस आएगा, तो आंसर आएगा 145.2। और ये जो था वो आपका रफ वर्क था, ये हमें शो नहीं करना है। ओके, इनको हम एक अच्छे से टेबल बना देंगे।
आप पेंसिल और स्केल का यूज करके अच्छा सा टेबल बना सकते हो। ओके, तो ये है डेविएशन मेथड। होगा क्या, क्लास दी होंगे, फ्रीक्वेंसी दी होगी, पहला काम है क्लास वर्क एक्सपेंड करना, एडिशन डिवाइड बाय 2, ये हो जाए, इसमें से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर दो, उनको दे दो a। अब यहाँ पे लिखो डेविएशन d x माइनस a, d है और डेविएशन के लिए ही है। ओके, d इज इक्वल टू x माइनस a, इन सभी वैल्यू में से ये a जो है उनको माइनस कर दो और आंसर यहाँ पे लिख दो। फिर f और d का मल्टीप्लाई होके fd, इनका टोटल करो वो आएगा सिग्मा fd, इनका टोटल सिग्मा f, फॉर्मूला लर्न करना है a प्लस सिग्मा fd बाय सिग्मा f, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है डेविएशन मेथड। ओके, so students, now if you have any doubt in these questions, please write down in comment section, I will give you the answer. Thank you.